حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتے ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈرتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا ہے، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کے رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سر جو فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ بس انتظار کیجئے، آپ کا رب آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے، وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ یقین اگر مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھنا۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور پھر عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، دوسروں کی خوشی پہ حسد کرنے والے اپنی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو آپ ہمیشہ سچ بولا کریں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آیا کرتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت اسے برا بنا ہی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سہنا سیکھیں، نظر انداز کرنا سیکھیں، خاموش رہنا سیکھیں اور اکیلے جینا سیکھیں۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس تم صبر کرو، وہ تمہارے من پسند چیز سے تمہیں خوش کر دے گا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حلیہ بھی ویران رہتی ہے اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتے ہیں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں کہ وہ کتنی زمین ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی ہے، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔
कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। माँ चाहे पढ़ी लिखी न हो, लेकिन दुनिया की हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। नेकी छोटी हो या बड़ी, अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो दोजख हराम कर देता है। जब माँ बाप अपनी औलाद के हक़ में दुआ करते हैं तो ज़मीन और आसमान के दरमियान के सारे दरवाजे हट जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान है, अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा न करने की वजह से जहन्नम में जाएगा। ज़िंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से ना रोए। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है यह भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं और उसका फ़ज़ल है कि वह हर वक्त हमारे ऐब छुपाता रहता है। ज़िंदगी ने यह सिखाया कि हमारी ख़ामियों से ज़्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद किया जाता है। ताज्जुब है कि अल्लाह के इतने सारे मखलूक हैं, फिर भी वह हमें नहीं भूलता, और हमारा सिर्फ़ एक रब है और हम उसे भूल जाते हैं। दीवारों के पास कान हो या न हो, लेकिन फ़रिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है, और यह बात ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हर हाल में साथ निभाने वाला हो। खुश रहने के लिए रिश्तों को आजमाना नहीं, बल्कि निभाना होता है। अमीर वह है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो, प्यार हो और मोहब्बत हो। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग हमारी नफ़रत के काबिल नहीं होते और हम उन पर अपनी मोहब्बत जाया कर देते हैं। लोग बोलते हुए क्यों नहीं सोचते, उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन लफ्ज़ों के घाव नहीं भरते। जब तक खुद पर नहीं गुजरती है, एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं। उस इंसान की ज़रूर इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे गैर मौजूदगी में भी करता है। किसी की नरमी को उसकी कमज़ोरी न समझो, अगर वह सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा दुख इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं ताकि माँ बाप परेशान न हो। मुझे ऐसा रब मिला है जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता तो दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता है। किसी दूसरे के गिरने पर खुश मत हुआ करो, क्योंकि मालूम नहीं कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। जो शख्स अपना भेद महफूज रखने से आजिज़ है, वह दूसरों का भी राज महफूज रखने से निहायत आजिज़ होगा। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए बयान की जाती है। नादानों को उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। अहमक की अकल उसके ज़बान के पीछे और अक्लमंद की ज़बान उसके अकल के पीछे होती है।
अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बूढ़ा कर जिल्लत उठाता है। जो शख्स अपने आप को खुद गुमराह करे उसको कोई दूसरा शख्स सही राह पर नहीं ला सकता है। जहाँ आपकी इज्जत न हो वहाँ मत जाया करें, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों न दिया जाए। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानिंद हैं जो सो रहे हैं और सफ़र जारी है। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। जब कोई बात इंसान दिल में पोशीदा रखता है तो ज़बान से उसके इशारे मिल जाते हैं। मोहब्बतें और खुशियाँ बांटते रहा करें, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ देते हैं वह सूख जाता है। दुनिया की कोई भी दवा उस इंसान पर असर नहीं दिखा सकती है जिसका ज़हनी सुकून किसी इंसान से वाबस्ता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस मर्द की मोहब्बत को सर आँखों पर रखना जिसको मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारा पर्दा अजीज़ हो। जब कोई आपको मुकम्मल छोड़ जाए तो अल्लाह पाक आपको मुकम्मल करने के लिए पहले वाले से बेहतर भेज देता है। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहज़ों में लिहाज ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह पर यकीन वह ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरऔन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। अल्लाह को पुकारो, वह ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। इंसान को उसके हालात नहीं ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन ख़यालात का बदलना आसान नहीं होता। अगर अल्लाह आपकी दुआ नहीं सुन रहा है तो खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि वह आपको सुनाना चाहता है। वह चाहता है कि मेरा बंदा बार बार मांगे मुझसे। यह अल्लाह की मोहब्बत है, इस पर नाशुक्री न करें। कभी कभी कुछ ख्वाहिशें तब पूरी होती हैं जब दिल से उनकी ख्वाहिशें और ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम बुराई के काबिल नहीं रहते। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ तबीयत, तरबियत और नीयत से है। उस रब से डरते रहो जिसकी सिफत यह है कि अगर तुम बात करो तो वह सुनता है और अगर तुम दिल में रखो तो वह जानता है। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फ़कीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नज़र नहीं आते। ज़िंदगी के मकसद में अव्वलीन मकसद अल्लाह ताला के बनाई गई हुदूद में रहकर खुशियों की तलाश होना चाहिए। कुछ शक नहीं कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती पाकीज़गी में है।
زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔